Okay. Good afternoon, all. So we will start with Good today's afternoon, sir. session. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So basically, in this, we have done with the first lecture of C division. Still, we are starting with that specific basic points of that regarding subject for B division also. So, programming and problem solving is the one of the subject of your curriculum for term 2 of your academic first year academics. So, out of that 5 subjects, one of the subject is what? Programming and problem solving, which is the one of the mandatory subject for our engineering field or engineering stream. With respect to all branches, we can call it. If we consider mechanical, some of the software things we have to done with programming itself. In civil, not that much, but still, those who want to do a career with respect to IT field, they can go for this subject and they can, for example, our training and placement cell. Most of the civil students also join the IT companies, and they are and also eligible for that specific uh, drives which are conducted under our TNP cell, and those are also eligible. Those students are civil, mechanical, ENTC, and com. Some of the companies are there. Those are taking the students from mechanical also and civil also. They are good familiar with or excellent in that specific programming. If you know, from 2019-20 batch, one student is from civil department, that is Aarti Sharma. Actually, she is the only one student who got the place in that one of the company. I don't remember the name of that company, but she got the 8.5 lakh package for that specific, because and other students are also there for that specific company. But what the main reason is what? The knowledge she have that specific regarding that programming, and she also having the interest to join that specific IT field. That's why she got place also, and she actually from first year itself. Actually, she is from 2016-17. She is in first year, and I am the only faculty. I have teach her FPL1 and FPL2. That is fundamentals of programming 1 and fundamentals of programming 2. That is C, C++, and HTML and basics of HTML, Android. That things are there. And after that, also she is touching with me after fourth year. So still here she is in civil department, but she done with Java courses, then other programming courses like HTML, PHP also. So that is one of the advantage. If you are in civil also or mechanical also, and even ENTC also, our college having most of the companies are there which are allow the other stream students also to attend that specific drive of IT companies also. Okay, am I clear with this? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so Yes, those sir. who are those who want to make a career in IT from civil also, they can concentrate on this subject from day one itself. And in your second year, third year, you have to be in touch with any programming language for make in touch with respect to your drives, because your drives will be of first sem of, for example, our 2020, that is जो भी third year में students है, their first drive is over, that is persistent, and total out of 79, 40 students cracked the FT. So other students not cracked the FT, because what is the reason? Because that some of the technical parts they have not prepared in that specific 1 or 2 years. So one of the basic things, if you are done with your course, this course with semester 1 or semester 2 of that first year, be in touch with your second year and third year with respect to programming, because some of the questions and some of the programs will be there with respect to your interview process. So for that, you may be touch with that specific any specific language. That can be C++ or that can be Python or C. We will conduct in the lectures for the revision session for that BE students also at the time of before the 1 month of that specific drive. So some of the concept we will revise for that those students, those who want to want a revision of that specific programming language. So you have to be in touch in these 4 years, okay, with respect to that specific programming courses, okay. So we will not wasting so much time with respect to this introductory part.
we'll directly start with that specific course of that PPS. I will share the first screen. Screen is visible? Yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now? Hello? No, sir. No, sir. I share a Okay, big. wait. Now it is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So we will start. Before we starting our the course, actual course, one of the thing I want to discuss with you, that is OBE for programming and problem solving. What is the meaning of OBE? Screen is visible now? Slides are visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, Yes, sir. Sure. okay. So see the first slide. What I have written here? OBE for programming and problem solving. Now, what is the meaning of OBE? That is outcome-based education. That is one of the thing that is required in a technical field or technical education system. That is engineering colleges. We follow the OBE philosophy, which is required for NBA accreditation also. With the point of that NBA, that is outcome-based education. What is the meaning of outcome-based education? That is after the completion of that specific course. What is the outcome that is achieved from that perspective of that specific course? If you consider programming and problem solving, so student able to write the code in that Python, student can able to solve the problem of that specific problem which is given by, for example, customer, and that we have to write a solution for that and write a program for that specific problems. That is one of the outcome of that specific programming and problem solving subject. Now, examination scheme actually this year that scheme is changed because pandemic situation is there. That's why online pattern is there. But before that, actual scheme is what? 30 marks for in-sem examination, 70 marks for end-sem exam. Practically is 25 marks. That we have to, one session will be given in this semester. From 1st June, we will conducting weekly one practical for this subject. That is, we have to cover different assignments, programming assignment with respect to this subject. So all of you clear with this scheme? What is the examination scheme? Yes or no? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, that is the outline of presentation is vision and mission of college. You all know vision mission of the department of first year department. Here prerequisite and companion of course. Prerequisite क्या चाहिए यहाँ पे? Basic computer principle. Basic computer principle. At least you know the what is software, what is application software, what is system software, what is operating system, what is open source operating system, what is closed source operating. That is the basic requirement. And on this, I will give one prerequisite test after this lecture. So all of you give that test. Test is of 25 marks. And total 13 questions will be there. And basic questions, what is hardware, what is software, what is input output, likewise, what is system software, likewise questions will be there. All of you clear with this? Hello? Yes, sir. Yes, So sir. prerequisite nothing but basic knowledge of that. While we are starting any course, you have to know that basics of that specific computer principles. And companion course for this. Companion course means PPS lab. अभी जो मैंने आपको बोला कि जैसे कि 3 hours per week theory session will be there as per SPPU, and 2 hours per week practical session will be there. So that is nothing but your PPS lab. So companion course क्या है? PPS lab. अभी यहाँ पे मैंने एक नीचे एक डायग्राम ड्रॉ किया है.
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीपीएस एफई के अंदर दिखा है मैंने, उसके बाद एसीटीबी। अभी ये क्या किया मैंने, this PPS is a prerequisite for FDS, PPL, SDL, WT, ML, STQ. That is, these are the courses, some of the courses which are there in computer branch in second year, third year, and B. Also, with respect to ANTC, data structure is there. That is FDS. यहाँ पे जो लिखा है मैंने, वैसे आपको same subject will be there in your second year, data structure, and another one subject is there, object-oriented programming. So for these two subjects, third year system programming is there. So for these three subjects, this is a prerequisite course, that is PPS. For civil, I think no prerequisite course is there. But what is the advantage of programming subject is what? Your logical and analytical skill will be improved by this course. Because while you are solving any problem with respect to programming, you have to think on that specific problem, how to write a logic for that problem, what is that actual problem. That is a thing that you have to think on that. So obviously that will be effect, that effect will be on your total thinking power of that specific, any problem. That can be of civil engineering problem, that can be of mechanical engineering problem, that can be NTC engineering problem. Because if you are considering every course, we have to solve problems only. And that problem with respect to that specific course. So जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, problem solve करना है, मतलब we have to write a program. Getting? Yes or no? Hello? All of you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So all of you clear with prerequisite and companion course? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So these are the books to refer, but मैंने आपको एक ही book बोला है. Which book? Python programming using problem solving approach, रीमा थरेजा, जिसमें सारे यूनिट्स कवर है. सिर्फ बेसिक पार्ट जो बोला है मैंने यूनिट 1 का, दैट इज इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका मैंने एक सेपरेट से पीडीएफ आपको मैंने सी डिवीजन को उस दिन बताया था गूगल क्लासरूम पे ऊपर जाके, रीमा थरेजा स्कैन नोट्स, स्कैन बुक का पूरा पीडीएफ वहां पे 1 to 6 यूनिट का मैंने दिया आपको. सो यू हैव टू रेफर दैट मटेरियल ओनली फॉर योर रेफरेंस पर्पस. तो बाकी कुछ ये रेफर नहीं करना है. और पीपीटी जो दी है वो आपको एक रेफरेंस पर्पस के, मतलब रिवीजन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट डिटेल के लिए आपको क्या करना है, बुक ही रेफर कर रहे हैं. बट रिवीजन पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीपीटी यूज कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? व्हिच बुक यू हैव टू रेफर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then program outcomes, actually that these are the 12 outcomes are there while you are studying any course. These are the program outcomes that you have to follow. This is the important part with respect to any course, that is course objective. Now what is a course objective? Course objective means what basically you have to watch with which type of objective you have to achieve from this course. So first one is to understand problem solving aspects, programming and to know about the various programming design tools. अभी ये कहाँ पे कवर होता है, हमारा यूनिट नंबर 1 में कवर होता है. कहाँ पे कवर होता है? दिस ऑब्जेक्टिव 1 इज कहाँ पे कवर होगा? यूनिट नंबर 1. तो वहां पे यूनिट नंबर 1 में क्या करना है हमें? वी हैव टू नो व्हाट इज प्रॉब्लम, how to solve that problem, what are different problem solving aspects, different types of problem. उसके बाद different types of program design tools जो हमें पढ़ना है वो यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है. उसके बाद हेलो सर, some students are waiting. That's why I have told that, because एक बार मैंने screen share किया ना, so it is not possible to accept those students. Okay. So that's why you have to make in a time, you have to log in make a basic time only. इसलिए मैंने लिंक भी कितने बजे भेजा था? 12:40. Yes or no? Yes, sir. So try to now it is 1:16 only. So 15 minutes already हो चुका है. So अभी यहाँ पे मैंने ये किया है, देखो वहाँ पे आप कोई करना चाहता है तो करने के लिए बोले उनको, they can join the link. We'll wait for some time. So still no notification regarding anybody want to join the meeting. So we can continue. Hello. Sir, they are messaging, they are waiting. That's why I told you have to within after I have screen share किया ना एक बार, तो उसमें क्या होता है, ऑटो एडमिट का वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, उस केस में.
Getting? Okay, sir. I'll convey it. Yes, convey them. So can we continue? Hello? Hello? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay. Yes, sir. So second objective is what? To learn problem solving with computers. Okay. So problem solving with computers means how to solve the problem with computers. That is how to write a algorithm, how to draw flow chart, how to write a program. That is nothing but what? Problem solving with computers. Third one is what? To learn a basic of Python, then features of Python and future of Python programming. तो मतलब पाइथन का हिस्ट्री क्या था, उसके पाइथन क्यों मतलब मार्केट में कब आया, कहाँ कैसे होगा, उसके साथ रिगार्डिंग उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने उसको इन्वेंट किया, उसके बाद उसके फीचर्स क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द एडवांटेज ओवर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट वी हैव टू लर्न इन यूनिट नंबर 1. दिस ऑल थ्री फीचर्स वी हैव टू लर्न इन यूनिट नंबर 1 ओनली. उसके बाद फोर्थ फीचर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्वेंट विद डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग एंड फंक्शंस इन पाइथन. So these are the different things that we have to learn in unit number 2, 3. Okay, and for next one is what? To learn features of object-oriented programming using Python. Actually, last two, that is to acquaint with use and benefits of file handling. These two are not right now in your for your exam actually for this sem, because your exam will be of only 4 units. So that's why we are covering only 4 units only. Okay. Okay, I will admit it. So this that is objective number 5th and 6th. That is to learn features of object-oriented programming using Python and to acquaint with use and benefits of file handling. अभी ये दो यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 5 and 6 है. इसको हम लास्ट में कवर, मतलब when you are getting the time, we'll cover it in मतलब thoroughly नहीं कर सकते, but basic things I will tell you what is there in object-oriented programming, what is there in file handling. When you are covered with all these 4 units first. Okay, all of you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So first 4 units are there in your exam. That is first unit basics of problem solving, second one decision making statements, third one is functions, and fourth one is string. So all of you clear with the course objectives? Yes or no? Hello? Yes, Yes, sir. Okay. Now next part is course outcomes. Now course outcome क्या होते हैं? मतलब हर कोर्स का जो भी हम कंटेंट सीख रहे हैं यहाँ पे, तो वो सीखने के बाद व्हाट इज अ कोर्स आउटकम, यहाँ पे ऊपर लिखा है देखो, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, व्हाट इज अ कोर्स आउटकम? आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, फर्स्ट वन इज व्हाट? अप्लाई वेरियस स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब ये कोर्स मैंने पढ़ाने के बाद आपको what at the end of semester, what is the first course outcome is what? Apply various skills in problem solving. मतलब आपको various skill apply करने आनी चाहिए for problem solving. मतलब मैंने आपको एक problem statement दिया, तो उसके ऊपर आपको वो problem कैसे solve करना आपका आना चाहिए. Second one is choose most appropriate programming construct and features to solve problems in diversified domains. मतलब कि अभी आपने एक बार problem solve करने के लिए आपने कुछ skill apply किए, अभी उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकाला उसका प्रॉब्लम का, अभी वो सॉल्यूशन को आपको क्या करना है? डिलीवर करना है कस्टमर को. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई सम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एंड फीचर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. मतलब आपने उसका सॉल्यूशन निकाला है, बट वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू हैव टू अप्लाई सम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एंड फीचर्स टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन डाइवर्सिफाइड डोमेन. उसके बाद थर्ड आउटकम क्या होता है? अप्लाई द प्रोग्रामिंग स्किल for a problem those required the writing of well documented programs including use of logical construct of language Python. अभी मतलब कैसे होता है? अभी प्रोग्राम लिखना मतलब रैंडमली कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे हो गया, ऐसा नहीं है. You have to write a program in a well manner. That is, you have to write a specific you have to follow some instruction while writing that specific program. You have to follow specific logical part. Then now you have to follow you have to write some comments with respect to that specific programming constructs. मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, अभी वो प्रोग्राम लिखने के बाद क्या होगा?
वो थर्ड पार्टी देखने वाला है प्रोग्राम, मतलब दैट थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि मैंने एक कोड आपको दिया है और कोड में सिर्फ मैंने कोई इंस्ट्रक्शन लिखे और आपको बोला मैंने कि दिस इज अ कोड एंड यू लर्न इट, तो डायरेक्टली मैंने सीधा तो सम डिफिकल्टी वेयर विल बी देयर व्हाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोग्राम, बट इफ यू आर रिटर्न सम कमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट लॉजिक, जहां जहां पे मैंने कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट किया वहां पे मैंने ब्रैकेट में कमेंट का पार्ट में आपको सिखाऊंगा कैसे लिखने कमेंट, तो मैंने कमेंट लिखा कि दिस लॉजिक इज फॉर दिस दिस, दिस लॉजिक इज फॉर दिस दिस, दिस लॉजिक इज फॉर दिस दिस, तो उससे क्या होता है you will understand that specific program very easily and you require less time to understand a specific program, so that is nothing but well documented program, तो वहां पे that is one of the third outcome, and last one is apply significant experience with the Python program development environment, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, अभी प्रोग्राम लिखना है तो आपको कहाँ कुछ तो टूल यूज करना पड़ेगा, some tools you have to use, तो ऑब्वियसली प्रोग्राम लिखना है तो हमें सिंपली बेसिकली तो हम if you are using we have to use compilers, सो पाइथन यूज करना है तो पाइथन के लिए पाइथन लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट यू हैव टू यूज कंपाइलर, अभी एज पर यूनिवर्सिटी करिकुलम दे हैव मेंशन दैट यूज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? हेलो एनीबॉडी? हेलो Sir, where we can write. Sir, where we can write the code and run the code. No, open source operating system. I am asking about the open source operating system, not regarding where we write the code. Where we can modify or share. Sir, it is a code that is source code is not locked. We can write. No, that is correct with respect. That is correct with the open source operating system. But what is open source? Tell me what is the difference between Linux or Fedora or Ubuntu and with respect to Windows? So Windows is closed source. It's right governed by Microsoft. Yes. Windows is. Whereas Linux is open source. Yes. Developers can make. Yes. That is correct answer. Because why? अभी आपने देखा होगा while you are purchasing a laptop, when you are installing the Windows, you have to purchase license copy of that Windows, na? Yes or no? Or we are getting free of cost? We have to purchase. Yes, we have to give some amount. You have to purchase by giving some amount for that specific license copy. But that is not the thing with your open source operating system. You can install your Fedora or Ubuntu open source operating, that is Linux operating system. From you can directly search on Google Ubuntu this version setup. You'll get the download it from your Google. You'll get the setup of that specific open source operating. You can directly install it. So वो freeware है. So यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है? From 2016 course onwards, all the programs must be from open source operating system. इसलिए हमारे कॉलेज में अभी आप फिजिकली नहीं आ रहे, बट जिस लैब में अभी मैं लेक्चर लेता हूँ या आपका प्रैक्टिकल लेने वाला था, तो वहाँ पे कैसे लैब विल बी हैविंग 20 to 25 pieces. Each batch having of 20 students. Likewise, turn will be there for your batches. So क्या होता है, हर एक के लिए एक पीसी दिया, पर हर एक पीसी पे क्या है, we are not installing any Windows operating system. We have Ubuntu operating system. So in that you have to do the programming. So उसमें हमने 3.5 इंस्टॉल किया है, Python 3.5, and one notepad is there, gedit. तो उसमें हम प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसको सेव करते हैं और टर्मिनल पे जाके उसको रन करते हैं. और एक अभी आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, don't having open source operating, but you can install it. You can dual boot your machine. अभी जिसके पास विंडोज है, you can both भी यूज कर. dual boot करने से क्या होगा, आपका लिनक्स भी यूज कर सकते हैं और विंडोज भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो जिनके पास नहीं है और जिनके पास कुछ भी लैपटॉप भी नहीं, पीसी है, उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है. You can use online compiler. One thing is there, Google Colab is there, and another one is JDoodle, जो आपको मैंने हर एक लेक्चर में आपको करके दिखाने वाला हूँ. हर प्रोग्राम जितने भी हम करने वाले, that hands-on session will be there for each lecture. Okay, all of you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Okay. So Anaconda is there, PyCharm is there, different tools are there. You can use any IDE for your implementation of that Python programming. Okay. So but generally क्या है, उतना इंस्टॉल करते बैठना, तो अभी प्रैक्टिस पर के टाइम कन्वीनियंट के लिए हम क्या करेंगे, यू कैन यूज डायरेक्टली ओपन ऑनलाइन कंपाइलर. गूगल कोलैब यूज करो या JDoodle यूज करो, दोनों में से एक यूज करो. और डायरेक्टली और एक यूज कर सकते हैं W3 School.
जहाँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बोथ थिंग्स यू विल गेट, दैट इज वन थिंग इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड सम कोड एंड यू कैन ट्राई योर कोड एट दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ओनली। तो आपको करके दिखाऊंगा बाद में। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कोर्स आउटकम? यस और नो? हेलो? Yes, sir. Any doubt regarding course outcome? Hello? No, sir. All Okay. clear. So we have moved forward with respect to our syllabus. Okay. So as I have already told, ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, 3 hours per week, 2 hours per week प्रैक्टिकल थ्योरी, उसके बाद क्रेडिट 4 है इसको सब्जेक्ट को। क्रेडिट मीन्स आपको ये क्रेडिट मिलते हैं व्हेन यू आर पासिंग दिस सब्जेक्ट, यू विल गेट द 4 क्रेडिट ऑन योर मार्कशीट। ओके, देन इन सेमिस्टर 30 मार्क्स का वो आपको होगा। आफ्टर 1 month दिस एग्जाम विल बी देयर। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको थ्योरी एग्जाम के भी आपको क्वेश्चंस आपने देखा, गूगल क्लासरूम देखा है सबने? ऑल ऑफ यू सीन द मटेरियल ऑन गूगल क्लासरूम? Yes, sir. Okay, so all these things are, I have also uploaded a question bank regarding unit number 1 and 2 of that specific INSEM examination. So you have to prepare only that 50 question for your INSEM examination. If theory exam is there, MCQ होगा तो I have also shared your all the MCQ regarding these 4 units. Okay. Second is end semester examination. आप अभी ये एग्जाम आपको तो 50 मार्क्स का होगा, बट ये 50 मार्क्स आपके एग्जाम मार्कशीट के 70 कन्वर्ट होके आएंगे, मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। एंड प्रैक्टिकल 25 मार्क्स। अभी प्रैक्टिकल में क्या है, आपको मैंने आपको बताया कि आई विल टेक असाइनमेंट्स इन लैब सेशन, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स। You have to do that programming assignment at your own, at your side. You have to submit those assignment on Google Classroom, and depending upon that, you will get the 25 marks regarding that. If you are submitting all the assignments on regular time, you are punctual in the lectures, your score in unit test and prelim is good, INSEM is good, then your interaction in lecture is good, you will get the 25 out of 25 also for that specific practical. So depending upon these parameter, you will get the marks for that practical. All of you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So prerequisite मैंने आपको पहले बताया था. Students are expected to have a good understanding of basics of computer. At least आपको operating system क्या है वो पता होना चाहिए. Software क्या होता है वो पता चाहिए. Browsers क्या होते हैं वो पता होने चाहिए. Okay. कंपेनियन कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लैबोरेटरी, उसके नीचे मैंने दिया है सारी चीजें। ये कोर्स ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, कोर्स आउटकम भी ऑलरेडी बताया। अभी सिलेबस देखो 1 by 1। यूनिट नंबर 1, सो यूनिट नंबर 1 बेसिक है, जिसका मैंने 2 पार्ट में आपको मटेरियल डिवाइड अपलोड किया आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर। यूनिट नंबर 1 का जो जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है, उसके लिए यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 ऐसे किया है मैंने नाम फाइल का। और सेकंड जो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जो है जहां से आपका फ्रॉम यूनिट नंबर 1 का हाफ पार्ट एंड अप टू जितने भी बाकी यूनिट है वो सारे आपको कहां पे मिलेंगे? रीमा थरेजा, पॉइंट बाय पॉइंट इन डिटेल ऑल थिंग्स विल बी देयर। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? हेलो, एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. सो यूनिट नंबर 1 में क्या है देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ, टाइप्स ऑफ problem solving with computers, difficulties with problem solving aspect, top down design, problem solving strategies, then problem solving design tool. This is a very important topic with respect to any programming language. Algorithm, flowchart, pseudocode and implementation of algorithm. ENTC students, आपको सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड OOP, एंड थर्ड ईयर में SPOS। तीनों के लिए आपको algorithm एंड flowchart ड्रॉ करना आना ही चाहिए, algorithm लिखने के लिए आना ही चाहिए। If you know how to write the algorithm and flowchart, how to draw a flowchart, you will definitely write any type of program, because you know all types of instruction with respect to program. वो मैं आपको ठीक सिखाने वाला हूँ, but उसको implement कैसे करना है? For that purpose, you know how to draw flowchart and you know how to write algorithm. So civil students also try to get the clear with that algorithm flowchart. When I will टेक दिस कंसेप्ट इन लेक्चर, एल्गोरिथम कैसे लिखना है, उसके बाद फ्लो चार्ट कैसे लिखना है, सूडोकोड और एल्गोरिथम दोनों में से एक आया तो भी चलेगा, बोथ आर सेम थिंग, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, यहां से हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, जिसमें हमें फीचर्स ऑफ पाइथन देखना है। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में, इनसेम एग्जाम में भी होता है और एंडसेम एग्जाम में भी हो सकता है। उसके बाद
हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन, मतलब फ्यूचर क्या है पाइथन का, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम, कैसे राइट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम, लिटरल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, इनपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे बेसिक्स थी सीखेंगे पहले यूनिट नंबर 1 में। उसको कितने आवर्स दिए, 7 आवर्स। तो इसमें कम भी हो सकता, कम लेक्चर में भी कवर हो सकता है, ज्यादा लेक्चर में भी कवर हो सकता, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट उसे बोलते हैं हम, जिसमें हमें इफ एल्स, उसके बाद फॉर, व्हाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो सारी चीजें देखने बाद में देखेंगे। अदर डेटा टाइप्स एक देखना है, वो बाद में सारी चीजें देखेंगे। फंक्शन एंड मॉड्यूल इज द 3rd यूनिट, 4th यूनिट स्ट्रिंग्स, 5th यूनिट एंड फिर 6th यूनिट इज नॉट इन योर फॉर योर एग्जाम पर्पस, बट फॉर NNTC you know basics of this OOP, so it will be helpful for your 2nd year, that is the subject of object oriented programming, because features are same for each and every object oriented programming। मतलब आप जावा पढ़ेंगे तो सेम फीचर्स, CPP पढ़ेंगे दैट इज C++ पढ़ेंगे सेम फीचर्स, पाइथन पढ़ेंगे सेम फीचर्स। अभी आप बोलेंगे कि अभी पहले C की नहीं आया, C सिलेबस से क्यों हटाया, मतलब प्रीवियसली सिलेबस में C था, C++ था फॉर फर्स्ट ईयर, अब लास्ट ईयर सिलेबस इज चेंज एंड दे हैव डायरेक्टली टेक इन्वॉल्व्ड सब्जेक्ट दैट इज पाइथन, एंड वो भी थ्योरी, पहले थ्योरी सब्जेक्ट नहीं था, only MCQ based exam is there for FPL1 and FPL2. So why they are introduced this subject? Because Python is both procedure oriented and also object oriented programming language. पहले कैसे था, before learning any object oriented programming you have to go for procedure oriented program, that is C पढ़ो, उसके बाद C++, उसके बाद Java, but that is not the thing with now। अभी C मार्केट में कहाँ पे भी ज्यादा यूज होता है, मतलब some core companies जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल बोल सकते हैं, बिकॉज ड्राइवर्स कंपनी जो ड्राइवर्स या ग्राफिक्स कार्ड जो बनाते हैं, जैसे एनवीडिया बिल्ट देयर प्रोडक्ट इज बेसिकली ड्राइवर्स एंड ग्राफिक्स कार्ड। तो ड्राइवर जो बनते हैं वो बेसिकली C लैंग्वेज में यूज होता है, C लैंग्वेज ज्यादातर यूज होता है, तो वहां पे यूज होता है। बट जनरली अभी मार्केट में कंडीशन देखेंगे और ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, सो 90% दे आर यूजिंग नाउ पाइथन, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इन पाइथन ओनली, so that's why they are introduced this subject in first year itself। और इसका अभी ये तो बेसिक है, बट यू कैन लर्न एडवांस पाइथन आल्सो, जिसमें क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी सेट्स आर गिवन, मतलब इनबिल्ट है। जैसे कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करना है तो डायरेक्टली एक फंक्शन दिया आपको, वो फंक्शन यूज करो, डायरेक्टली यू विल गेट द आउटपुट। दैट इज नॉट डन विथ रिस्पेक्ट टू दैट C और C++, वहां पे आपको लॉजिक लिखना पड़ता था पूरा, और यहाँ पे उन्होंने वो पार्ट कम किया, यहाँ पे आप इनबिल्ट फंक्शन ज्यादा यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया। उसके बाद लास्ट वन इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग मतलब जो हम नॉर्मली टेक्स्ट फाइल देखते हैं, टेक्स्ट फाइल के ऊपर ऑपरेशन कैसे होते हैं, मतलब फाइल ओपन कैसे करना है, प्रोग्राम टू, फाइल में कंटेंट कैसे राइट करने, प्रोग्राम टू, फाइल के कंटेंट कैसे रीड करने हैं, प्रोग्राम टू, तो वो सारी चीजें हम फाइल हैंडलिंग में। पर ये अभी सिलेबस नहीं है, अभी मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, तो ये पार्ट हम लास्ट में व्हेन यू आर गेटिंग डन विद आवर होल सिलेबस देन वी विल सी, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कैसे जनरली, और आपको इसका मटेरियल भी मैं आपको सेंड करूंगा। ऑलरेडी आई थिंक मेल्ड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग यूनिट नंबर 5, 6 आल्सो ऑन योर गूगल क्लासरूम। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस सिलेबस ऑफ PPS? हेलो, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ओके ओके ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। ये बुक का तो मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक एक ही यूज करना है, बाकी यूज करने की जो, बिकॉज इसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको मैंने बोला था प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लैबोरेटरी, तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लैबोरेटरी में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे टोटल 23 एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन। सो 23 एक्सपेरिमेंट दिए, उसमें से हमें कितने बोले उन्होंने, 6 to 8 लैबोरेटरी असाइनमेंट्स। तो आपको 8, मैं सबमिशन कितना लेता हूँ, 8 का आपको सबमिशन करना है। मतलब मैं आपको यहाँ पे लैब में आपको व्हेन यूर आवर लैब इज देयर, आई थिंक वेडनेसडे इज आवर सेशन फ्रॉम फर्स्ट, मतलब आई थिंक 2 तारीख को हमारा पहला सेशन होगा रिगार्डिंग व्हाट लैब।
तो उसमें हम पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक प्रोग्राम कैसे राइट करना है, आपको भी पैरेलल करना है आपके साइड पे, तो वो सारी चीजें आपको बताऊं। तो उसके बाद हम 1 by 1 असाइनमेंट देखेंगे। तो ये असाइनमेंट दिख रहे हैं सबको यहाँ पे? हाँ सर, आप एक बार भेज सकते हो क्या हमें? Yes, sir. हम ऐसे कुछ प्रैक्टिस या कुछ कर पाए। क्या क्या? आप एक बार भेज सकते हो क्या हमें ये लिस्ट? अरे मैंने ऑलरेडी सिलेबस कॉपी अपलोड किया गूगल क्लासरूम। ओके, क्लासरूम में है ना? हाँ, यस यस, फर्स्ट फाइल, फर्स्ट activity that I uploaded on Classroom is syllabus. Then I uploaded that scan copy of Prima Thareja. Then InSame question bank. Then MCQ, and then last one is PPTs. All things are uploaded on Classroom. Okay, you can refer that material on that. अभी और एक thing मुझे बताना है. I think 106 students have joined the group, Google Classroom. Still 15 students are left to join the group. Remaining to join the group from B and C division. So try to join the group as early as possible. Okay. All of you clear? हॅलो सर. Yes, sir. आणि आता जी तुम्ही मीटिंग आहे ना ती पर्सनल ईमेल आयडी वर जो आहे केल्यामुळं बाकीच्या पोरांना करता येत नाही जॉईन. 100च्या पुढे जात नाहीये ते. ओके ओके हाँ तेच लक्ष माझ्या 100. अरे ऍक्च्युली काय आलं, ते काढून टाकलं माझं. ऍक्च्युली माझ्या लॉग इनला होतं ते कुठलं 255 आलं, पण आता ते एफईचं लॉग इन यूज करावं लागेल मला. ठीक आहे, चालेल, बघतो मी. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला चेक करतो मी. चालेल ओके. बरं झालं सांगितलं, आठवण केली. ठीक आहे. ते मुलं म्हणतात आम्हाला जॉईन करायचं, आता प्रेझेंटी पण नाही लागणार म्हणतात. ठीक आहे त्यांना सांगा की अटेंडन्स मला सांगा, मी लावून देईन अटेंडन्स, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे, चालेल. ओके, ठीक है. ऑल ऑफ यू क्लियर विद द असाइनमेंट्स आल्सो? हेलो. यस सर. तो ये आप एक बार देखो, और इसमें से हमें 1 by 1 जब लैब सेशन स्टार्ट होगा तो हम 1 by 1 एक असाइनमेंट डिस्कस भी करेंगे, प्रोग्राम भी आपको करके दिखाऊंगा मैं, एंड यू हैव टू डू इट योर साइड. उसके राइटअप भी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीक में आपके ग्रुप के ऊपर अपलोड करूंगा, कौन से राइटअप लिखने हैं इसके रिगार्डिंग. एक सैंपल जो लास्ट बैच के स्टूडेंट ने लिखा था उसी टाइप में आपको लिखना है. दैट इज हाउ टू राइट द एल्गोरिथम फ्लोचार्ट फॉर ईच एंड एवरी असाइनमेंट and basics of that specific assignment. So all of you clear with the syllabus? Anybody having doubts regarding the syllabus? Hello? No sir. Okay. So we will move forward with respect to our first unit. Okay. So first unit में अभी मैंने आपको जैसे बताया कि first unit is regarding the problem solving, programming, Python programming. तो इसमें पहले चीज हमें क्या करना है, what is problem, उसके टाइप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एवरीडे लाइफ. अभी ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोग्रामिंग. देन प्रोग्राम डिजाइन टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. सो एनीबडी कैन टेल मी इन योर ओन लैंग्वेज व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनीबडी? हेलो. Yes. Can you tell me what is the problem? What is the definition? Anybody can tell me. Problem means any problem, no? It is not respect. I am asking about the programming itself. It can be any problem. It can be math problem. It can be a BME SME problem. It can be physics problem. Life problem, game problem, many problems. Yes, problem is defined as an objective or a specific output that we want to attain through a sequence of steps and activities and specific input. तो आपको मैंने एक बोला कि आपको do a program to add 2 numbers. So मैंने आपके प्रॉब्लम दिया, write a program to add 2 numbers. तो प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें? What is the problem here? Which 2 numbers? Which 2 numbers? Yes, that can be one of the problem. Okay. Then next one is which one is the greater one, which is the lower one. But addition है तो उस वहाँ पे that is not matter. But actually that is one itself one of the problem. That is addition of 2 number करना है, मतलब that is one of the problem. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? You have to take 2 numbers. तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है specific input. तो specific input means what? That input can be, अभी वो बाद में बताऊंगा आपको. प्रोग्रामिंग हर अलग अलग टाइप का इनपुट हम इनपुट देते हैं. जैसे integer is there, floating point numbers is there, string is there. तो बाद में आपको बताऊंगा when we will actually start with programming. तो इनपुट देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया write a program to add 2 numbers. तो आपको क्या इनपुट लेना है? 2 नंबर इनपुट लेने हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग टू सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या करना पड़ेगा हमें?
यू हैव टू ऐड दिस टू नंबर्स, तो उसके लिए आपको क्या ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा? प्लस ऑपरेटर ना, यस और नो? एडिशन करना पड़ेगा ना? हेलो? Yes, sir. Yes. So then you will get the output, that is addition of two numbers. So that is nothing but problem की definition क्या है? तो एग्जाम में इन सेम में क्वेश्चन हो सकता है, what is the problem and how to solve problem in everyday life. तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? It is an objective or specific output that we want to attain through a sequence of steps and activities and specific input. Okay, all of you clear with the definition of problem? Yes or no? Hello? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay. उसके बाद है पेड. अभी a logical problem solving process can be done through some steps called पेड. अभी इसको शॉर्ट फॉर्म किया मैंने, पेड. अभी पेड में क्या होता है? पहले तो आपको जब लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जो भी आप प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली क्या होता है? लॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर. सो उसमें पहले क्या होता है? यू हैव टू नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सेकंड वन इज एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल, आइडेंटिफाई लाइकली क्लॉज एंड डिफाइन द एक्चुअल क्लॉज. मतलब अभी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? यू हैव टू यू विल गेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे सी असाइनमेंट का एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय गिवन हिज बेसिक पे, टेक ए इनपुट फ्रॉम यूजर. कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, लेट HRA इज 10% ऑफ बेसिक पे, TA is 5% of basic pay. Let employee pay professional tax of 2% of total salary. Calculate the net salary payable after the deductions. तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें क्या करना है. सो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रोग्रामिंग नहीं बोल रहा मैं, जनरल को बताओ मुझे ये क्या करना है. आप हमें क्या चाहिए आउटपुट इसमें? व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू टेक एज ए इनपुट, and what we have to perform the operations, and what we have to take add. We have to remove a percentage from that. Yes, first हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है कि you have to calculate the salary of employee given a basic pay. मतलब इनपुट क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे? What we have to take input? Salary. Yes, basic pay. उसके बाद उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी. अभी ग्रॉस सैलरी कब कैलकुलेट हो सकता है? उसके लिए उन्हें कुछ पैरामीटर सेट किए. कौन से पैरामीटर बताओ मुझे? पहला हो गया HRA ना, यस और नो? HRA हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10% ऑफ बेसिक पे मतलब क्या हो गया? बेसिक पे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 0.01 से. उसके बाद TA बोला है उन्होंने. TA कितना बोला है उन्होंने? 5%. वो भी निकालना पड़ेगा. उसको हमें बेसिक पे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद उन्होंने क्या बोला? अभी टोटल सैलरी निकालेंगे हम. टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे? बेसिक पे प्लस व्हाट? HRA प्लस TA. तो क्या मिला हमें? टोटल सैलरी. यस, टोटल सैलरी. अभी टोटल सैलरी के ऊपर उन्होंने क्या बोला है हमें? व्हाट दे हैव गिवन? एम्प्लॉय पे प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2% ऑफ टोटल सैलरी. तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 0.02. यस. तो अभी जो भी आएगा प्रोफेशनल टैक्स वो हमें कहां से डिडक्ट करना पड़ेगा? अगेन जो हमारे हाथ में आएगी सैलरी में से. यस, टोटल सैलरी में मतलब एक्चुअल सैलरी पेएबल इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस व्हाट? प्रोफेशनल टैक्स. यस और नो? यस और नो? हेलो, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? सो इस टाइप से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वी हैव टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अभी ये प्रोग्रामिंग थ्रू कैसे करना है वो बाद में हम देखेंगे जब व्हेन यू आर सी द. बट ऑल ऑफ यू क्लियर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्चुअली हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? हेलो, यस सर. अरे बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Okay, all of you will must be interactive in the session. अभी ये देखो, ये एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम इन डेली लाइफ देखो. तो दैट कैन बी एनी टाइम. जैसे एक स्टूडेंट में अभी बोला था प्रॉब्लम कैन बी ऑफ एनी प्रॉब्लम. सो मैकेनिक्स रिपेयर अ ब्रोकन कार, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. स्टूडेंट टू डू साइंस एक्सपेरिमेंट. जैसे अभी PPL, इन PPL you have to solve a problem ना. Yes or no? Yes or no? PPL you have to choose one problem statement. Yes or no? For PPL. Yes. And that problem statement you have to solve, and that just solve करेंगे मतलब what you have to get, you are getting the
final output of that product, yes or no? That is nothing but solving the problem. उसके बाद workers go do work, that is also one of the problem. Kids want to eat sweets, doctor find a new bacteria. All these are general life problems. So this is nothing but general life problem. उसके बाद how to solve problem. अभी ये when we are thinking about the how to problem solving, तो पहली चीज होती है ask the questions to yourself. What is the first thing that you have to know? What you have to ask about yourself? Some questions are there. So first question you have to ask is, ये जनरल है, इसका और सिलेबस का कोई रिलेशन नहीं है, बट जनरल स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं आपको. सिलेबस में आपको सिर्फ अभी तक क्या पार्ट याद रखना है, व्हाट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन. एक चीज याद रखनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. ये बाकी चीज है, ये जनरल थिंग्स है. तो आस्क क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. तो पहला क्वेश्चन आपको यू आस्क करना है, व्हाट डू आई नो अबाउट द प्रॉब्लम. जैसे आपको मैंने अभी एक प्रॉब्लम पढ़ के दिखाया, असाइनमेंट नंबर 1 लैब असाइनमेंट, तो वो पढ़ के दिखाया, उसके बारे में आपको क्या पता है. जैसे कि HRA कैसे कैलकुलेट किया हमने, उसके बाद TA कैसे कैलकुलेशन किया, टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट, दैट यू हैव टू नो. उसके बाद व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव टू प्रोसेस इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन. ये किया क्या अभी हमने. हेलो, whether we have asked about this with ourselves, yes or no? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, audible. Yes. So all of you getting what is the information that I have processed in order to find the solution? तो मतलब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे कि जिससे मुझे वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो अप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद व्हाट डज द सॉल्यूशन लुक लाइक, मतलब सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, मतलब क्या एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा. मतलब जैसे कि पहले जो असाइनमेंट बताया उसमें सॉल्यूशन क्या चाहिए मुझे डायरेक्टली सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए कि क्या सैलरी स्पेसिफिकली मुझे आउटपुट में क्या बोला उन्होंने कि डिडक्ट करके मुझे क्या सैलरी मेरे हाथ में आने वाली है आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस वी फॉलो फॉर दैट स्पेसिफिक सैलरी कैलकुलेशन. उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ स्पेशल केसेस एग्जिस्ट. मतलब अभी क्या होता है, अभी ये तो हो गया जनरल सिंपल प्रॉब्लम होता है, पर कभी कभी क्या होता है, सम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मोर देन वन वे. तो उसके लिए स्पेशल केसेस है क्या वो सॉल्व करने के लिए. So that can be happen with respect to this. Then how will I recognize that I have found the solution? That is one of the important point while you are solving the problem. So anybody can tell me what is the meaning of how will I recognize that I have found the solution? Hello? Hello? So can you repeat? How will I recognize that I have found the solution? By compiling it and running it. Yes. अभी जनरली क्या होता है, आपको जब प्रोग्राम करते हैं आप, व्हेन यू आर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, सिंपल आपको एक चीज बताता हूँ. इन इंडस्ट्री डेवलपर टीम इज देयर एंड दैट डेवलपर हैविंग दे हैव असाइन्ड वन कंपनी असाइन्ड वन प्रोजेक्ट and that project is assigned to, for example, that team of 100 employees, 100 members are there in a specific team. Okay, so that problem is again that product is again divided into sub module or sub product. That is one module is there, second, third and fourth, and 10 member को ये एक मॉड्यूल बना डेवलप करने के लिए बोला, दूसरा मॉड्यूल अनदर 10 मेंबर्स को बोला. ओके, तो उसके बाद ये जब डेवलपर करता है ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉड्यूल डेवलप किया, तो उसके क्या होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं. जैसे कि कस्टमर के क्या एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि कस्टमर ने बोला है कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे चाहिए जो लॉगिन पेज है कोई भी सॉफ्टवेयर का. तो लॉगिन में क्या चाहिए मुझे, पासवर्ड. आई वांट पासवर्ड, द पासवर्ड मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर हैविंग मिनिमम साइज ऑफ 8 कैरेक्टर. Password must consist of one uppercase, that is uppercase character, alphabets. Must consist of one number. Uppercase, lowercase, number. Yes. So this is our requirement. But at the time of I have build that module, वहां पे मैंने ये फॉलो नहीं किया है. तो वो टेस्टर जब उसको टेस्ट करेगा, टेस्टिंग टीम भी रहती है इंडस्ट्री में, तो टेस्टिंग की अलग टीम होती है. तो टेस्टर जब टेस्ट करेगा, वो टेस्ट क्या करेगा बताओ मुझे, क्या टेस्ट करेगा, पासवर्ड कैसे टेस्ट करेगा. How he will test the password? Anybody? By having a captcha or something. Yes. वो कैसे करेगा कि वो क्या करेगा कि पासवर्ड पर जो मैं एंटर कर रहा हूँ उसमें वो एक कैरेक्टर क्या लेगा, अपर केस लेगा, एक लोअर केस लेगा, वन स्पेशल कैरेक्टर लेगा,
वन नंबर लेगा और वो कैरेक्टर, वो पासवर्ड की साइज कितनी होगी मिनिमम? हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 8 कैरेक्टर। ओके, 8। वो उसने एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियसली क्या हो गया? दैट कैन बी टेस्ट, दैट टेस्ट केस विल बी सक्सेसफुली सक्सेसफुल, दैट इज रिजल्ट इज पास टेस्ट केस। ओके, सो उससे हमें पता चलेगा हाउ आई रिकॉग्नाइज द दैट आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन। सिंपल और एक प्रॉब्लम दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको बोला एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करो आप, और आपने प्रोग्राम किया और मैंने इनपुट डाला 3 + 5, 3 and 5 एज द इनपुट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मुझे? व्हाट इज आउटपुट आई वांट? हेलो, 8 यस। तो उससे मुझे पता चला कि मैंने आउटपुट, मेरा सॉल्यूशन मैंने फाउंड किया है। दैट इज सिंपल थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। सो दीज आर द सम क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन तो हो गया हमारा। हाँ, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस। वो सिलेबस का पहला टॉपिक ही यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ। तो एग्जाम में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ? तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? टोटल 6 स्टेप्स आर देयर। हेलो, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 6 स्टेप्स आर देयर। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 is identify the problem. All of you see here, what is the step number 1? Identify the problem. Second one is understand the problem. Third one is identify alternative way to solve the problem. Fourth way to select the best way to solve the problem from the list of alternative solution. Fifth step is there, list instruction that enable you to solve the problem using selected solution. And last step is evaluate the solution. Getting all of you clear with the 6 steps? We will see one by one steps. हाँ, तो अभी आपको एक प्रॉब्लम दिया, एनी एक्सपेरिमेंट दिया लैब का, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम में दिया क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज आउटपुट दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। सो दैट इज अ बेसिक थिंग दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट, यू हैव टू एनालाइज फर्स्ट, देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वो भी आपको करना है। कि अभी आइडेंटिफाई किया आपने कि मुझे ये फाइंड आउट करना आउटपुट, अभी आउटपुट फाइंड आउट करना है, आपको पता चला, बट वो कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कैसे करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया आपको कि सम ऑफ द प्रॉब्लम कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस और नो? Yes or no? Yes. Okay. So you have to first find out that alternative way to solve that problem. अभी ये हो गया, बट अभी उसमें से हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, 3 प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, तो उसमें से हमें क्या करना है? बेस्ट सॉल्यूशन जो हमें आउटपुट देगा दैट यू हैव टू फॉलो। जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं वो आपको सिंपली बता दो। प्रोग्रामिंग में क्या होता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर द 2 पैरामीटर दैट यू हैव टू फॉलो। बाद में आप जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इज देयर इन दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है तो उसके अंदर 10 लाइन का कोड है, तो उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो 10 लाइन की रिगार्डिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कैलकुलेट करता है। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इज नथिंग बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए एक प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। एक सॉल्यूशन का मुझे मिल रहा है 5 लाइन में, एक सॉल्यूशन मिल रहा है 8 लाइन में, एक सॉल्यूशन मिल रहा है 10 लाइन में, और उसमें से मुझे क्या करना है? सिलेक्ट करना है बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन इन द पॉइंट ऑफ व्यू आउटपुट में भी, मतलब आउटपुट भी प्रॉपर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं कौन सा सॉल्यूशन है वहां पे फाइंड आउट चूज करूंगा? एनीबॉडी? एक 5 लाइन वाला है, एक 8 लाइन वाला है, एक 10 लाइन वाला है। एनीबॉडी? हेलो, can anybody tell me which solution I will choose? 8 line. 8 line. Why? Sir, can you repeat the question? I have find out the solution for one problem, and 3 solution I have found it. And that 3 solution, for that 3 solution, first solution I required 5 lines of code. Second solution I required 8 lines of code. And for third solution, I require 10 lines of code. So which solution I want to prefer? 5 lines. Yes, 5 lines Space code. complexity. Yes, space complexity that we have to follow. Again, उसमें से हमें और एक चीज याद रखनी है
तो फाइल लाइन कोड भी चूज कर सकते हैं, बट उसमें से और एक चीज वहां पे एक मैटर करता है कि आउटपुट भी वैलिडेशन, सारे आउटपुट के वैलिडेशन होने चाहिए। ऑल द वैलिडेशन ऑफ आउटपुट विल बी देयर। उसमें से एक भी नहीं हो गया तो यू हैव टू गो फॉर विच सॉल्यूशन? 8 लाइन सॉल्यूशन, दैट इज द करेक्ट वे। अभी उसमें से भी क्या हो गया, 8 लाइन सॉल्यूशन में भी क्या हो गया, कहां पे थी, मतलब फॉर एग्जांपल वो जो टेस्टर है उसने कुछ मोर वैलिडेशंस किए रिगार्डिंग इनपुट, तो वहां पे आउटपुट कहां पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, तो वहां पे फिर आप क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन। सो फॉर दैट यू हैव टू इंप्रूव द लॉजिक और यू हैव टू इंप्रूव द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, sir. ओके, अभी ये हो गया सॉल्यूशन का, तो यस वी हैव डन विद द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन फाइनल किया। अभी वो सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है उसको क्या करना है, हमें उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू लिस्ट आउट द इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग सिलेक्टेड सॉल्यूशन। जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक 2 नंबर्स, फॉर दैट यू हैव टू टेक 2 वेरिएबल्स, वो बाद में बताऊंगा कैसे लेने वेरिएबल्स। टेक थर्ड वेरिएबल, इन दैट थर्ड वेरिएबल टू स्टोर द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स and display the result of that third variable where your addition will be stored। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर दैट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। और लास्ट स्टेप क्या है, इवैल्यूएट द सॉल्यूशन। अभी इवैल्यूएट द सॉल्यूशन मतलब क्या करना है एक्चुअली, बताओ मुझे, सिंपल है। हेलो, बताओ मुझे, व्हाट वी हैव टू डू इन इवैल्यूएट द सॉल्यूशन? अरे स्टूडेंट्स, सर चेक करना होगा कि सब राइट। yes we have to check whether we are getting the output specific required output or not. Yes or no? Hello? Yes. So this is all about the problem solving in everyday life. So anybody having any doubt regarding this concept, what is problem and what is problem solving in everyday life? Yes or no? Clear है सबको? हाँ सर। ओके, सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ। तो इसका डिटेल में आपको जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, डिटेल में क्या लिखना है अंदर, जो मैंने एक्चुअली आपको बताया, आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट द मीनिंग ऑफ दैट स्टेप इज नॉट चेंज, और स्टेप का सीक्वेंस भी चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस सर। यस और नो? तो ये सारा मटेरियल आपको यूनिट नंबर 1 पार्ट 1 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पहला टॉपिक है, जैसे आपने पीडीएफ ओपन किया तो आपको वहां पे पता चलेगा कि व्हाट इज दैट स्पेसिफिक व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ एंड ईच एंड एवरी स्टेप विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ। उसमें आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडेज सेशन। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? Yes or no? All of you clear? हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, जैसे बताया यहाँ पे सब सारी चीजें दिख रही होगी आपको, सिलेबस, पीपीएस, रीमा थरेजस, स्कैन ऑल यूनिट, इनसेम एग्जाम, क्यूबीम, एमसीक्यू ऑल यूनिट एंड पीपीएस ऑल यूनिट। देन यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिट नंबर पार्ट 1। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ सर। ओके, सो यहाँ पे आपको जो मैंने बोला बताया था, सिलेबस भी यहाँ पे ऊपर दिया, देखो सिलेबस। हाँ, तो प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ, व्हाट इज प्रॉब्लम दैट विल बी देयर, दिख रहा है ये जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया। हाँ। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? एनी डाउट? नो सर। Okay, no, so we'll stop here. All of you give your attendance. Both division, I will call the roll numbers and you have to give your attendance. Both division students, you have to tell me present, yes or no. Yes, present or absent likewise. So roll number 1, both division. Roll number 1. Hello. Roll number 1. C division and D division, both you have to give the attendance. Hello, am I audible ना? बहुत सारे लोग Yes sir, you are audible. नहीं कर पाए। क्या हो गया? सर बाकीचे म्हणतायत ते उरलेले प्रेझेंटी कशी लावणार म्हणे? They have to send their numbers to my personal WhatsApp.
व्हॉट्सअप वरती सेंड करा सांगा त्यांना नंबर. ओके. Division C, roll number 1 and roll number 1 of division, both you have to give the attendance. Okay, math lecture link had come. Can you download our attendance? Our lecture is from 2 to 4. Lecture क्या अभी? हाँ सर 2 बजे. हाँ सर. Okay, that which lecture? That Unit 5, Unit 6 lecture. Okay. ठीक है. I will take attendance from previous faculty. Okay. Okay sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.